کی ریاست فاروق اعظم نے بنائی تھی، اور بنائی کس طرح تھی؟ حضرت فاروق اعظم کی اگر سلطنت کے بارے میں پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر حکومت کے بارے میں پڑھا جائے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سر بلند کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین مصطفیٰ کو بلند کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی انا پسند نہیں تھی، جن کو حکومت کی فکر نہیں تھی، جن کو اپنا آپ نہیں پتا تھا، وہ صرف اور صرف رب کے دین کا نام سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینے کے اندر حکومت قائم ہے مسلمانوں کی، آپ یہاں سے بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، ایک اونٹنی بیت المال سے آپ نے لی سواری کے لیے۔ اب ہمارے یہ جو بدبخت حکمران ہیں، یہ جو کمینے حکمران ہیں، اگر یہ کسی علاقے کے اندر جائیں، ان کی آپ گاڑیوں کی تعداد دیکھ لیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک علاقے سے ان کی گاڑیوں کی قطاریں شروع ہوتی ہیں اور دوسرے علاقے کے اندر ختم ہوتی ہیں، اور اس علاقے کے غرباء کو تو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی کہ یہاں سے ایم پی ایم این اے کسی وزیر نے گزرنا ہے، وہ بندہ راستے کے اوپر ہی نہیں آ سکتا، اتنی پولیس ہوتی ہے، اتنی ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ اتنے مقدس ہے بدبخت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک سفیر آیا کسی باہر کے ملک سے، سفیر آیا، اس نے آ کر مدینے کے اندر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، تمہارا حکمران کدھر ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، ہمارے ملکوں کے آپس کے اندر کچھ مذاکرات ہونے ہیں، تمہارا وقت کا بادشاہ کدھر ہے، اس کا محل کدھر ہے؟ صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے اس کے اوپر۔ اب اس وزیر کا وہ جو مشیر آیا تھا، اس کے دل کے اندر تو یہی بات تھی کہ جہاں پر ان کا حکمران بیٹھتا ہوگا وہ بہت بڑا محل ہوگا، اور وہاں پر بہت بڑا شاہی تاج پڑا ہوگا، وہاں پر بہت بڑا ان کا ایک بیٹھنے کی جگہ تیار ہوگی جہاں پر مسلمانوں کا بادشاہ بیٹھتا ہوگا۔ اس نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہے، ہمارا بادشاہ تو وہ ہے کہ جو اپنے لباس 70 پیمند 70 ٹکڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ کہا ہمارا حکمران کوئی شاہی لباس نہیں پہنتا، ہمارا حکمران کسی محل کے اندر نہیں بیٹھتا، اگر تم نے ہمارے حکمران سے ملنا ہے تو چلے جاؤ مسجد نبوی کے اندر، وہ مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمران مسجد کے قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ کے پاس آیا تو دیکھا آپ نے اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور اینٹ کے سہارے کے اوپر حضرت فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا عمر کافر تھا، گواہی دی۔ کہا عمر تو نے واقعی اپنی حکومت کے اندر عدل کیا ہے، عمر تو واقعی ہی سچا حکمران ہے، میں نے اپنے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ ململ کے بستر ہوتے ہیں، ان کی آرام گاہیں اتنی نرم و نازک ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کر سکون کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سکون کی نیند نہیں میسر آتی۔ عمر تو نے واقعی عدل کیا جو تجھے اینٹ کے اوپر بھی نیند آ گئی۔ حکمرانی اس طرح کی جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے محل دیکھ لیں، ان کی کوٹھیاں دیکھ لیں، ان کے بنگلے دیکھ لیں، اور رعایا غریب حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس لیے تو آج کشمیر کافروں کے قبضے کے اندر ہے، فلسطین کافروں کے قبضے کے اندر ہے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، ان کے اندر ایمان کی غیرت ہی نہیں ہے، یہ باغیرت لوگ ہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو فلسطین کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں نہ لوٹی جاتی، اگر ان بدبختوں کے اندر غیرت ہوتی تو کشمیر کے اندر وہ کافر انڈیا کے وہ فوجی مسلمانوں کی بچیوں کو اغوا کر کے نہ لے جاتے۔ محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجہ دہر ایک ڈاکو تھا، اس نے ان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا، ایک بچی نے، ایک عورت نے ایک خط لکھ کر محمد بن قاسم کو لکھا، کہا یہ راجہ دہر یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب سے چلا، سندھ کے اندر آ گیا اور آ کر اس کا سر قلم کیا، کہا یہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے خراب نہیں ہو سکتی۔ وہ غیرت مند حکمران تھے، ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر ایمان تھا، اور ان کے عدل اور ایمان کا یہ تقاضا تھا۔
حضرت फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े थे, एक बच्ची रोती हुई आपकी बारगाह के अंदर आ गई। कहा क्या हुआ? कनीज थी। कहा मैं तेल लेकर जा रही थी और मेरा तेल जमीन के ऊपर गिर गया। अब तेल था, उसने तो जमीन के अंदर जज्ब होना था। कहा अब जब घर जाऊंगी तो मेरा आका मेरे ऊपर जुल्म करेगा, मेरा आका मुझे सताएगा, मुझे मारेगा। रोती हुई फारूक आजम की बारगाह में पेश हो गई। आपने कहा मुझे उस जगह पर लेकर चलो जिस जगह के ऊपर तेरा तेल जमीन के ऊपर गिर गया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जब वहां पर गए तो आपने अपनी दुर्रा जमीन के ऊपर मारी और कहा है रब की जमीन, क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया कि तूने एक लौंडी का तेल अपने अंदर जज़ब कर लिया? तारीख के अंदर यह बात लिखी हुई है कि जमीन ने वो तेल वापस अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। वक्त का हुक्मरान, मुसलमानों का बादशाह ये होता है। हुकूमत इन लोगों ने की थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुकूमत की, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने हुकूमत की, हजरत फारूक आजम ने हुकूमत की, हजरत उस्मान गनी ने हुकूमत की और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हुकूमत की। और फिर जब इनकी हुकूमत के बाद खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से थे, ये जब हुकूमत इन्होंने संभाली खिलाफत राशिदा के बाद, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अमीर घराने के साथ ताल्लुक रखते थे, खानदानी अमीर थे, आपके पास माल और मता बहुत ज्यादा था। जब आपके पास हुकूमत आई, सबसे पहला हुक्म जो आपने जारी किया, कहा मेरे जितने भी असासे हैं, मेरी जितनी भी जायदाद है, वो सारी मुसलमानों के बैतुल माल के अंदर जमा करा दो। सब कुछ अपना वो मुसलमानों के बैतुल माल के अंदर जमा करवा दिया। मैं हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था कि आप जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँटनी आपने बैतुल माल से ली और अपने साथ सिर्फ एक गुलाम लिया। इनके साथ सिक्योरिटी के काफिले इतने होते हैं कि गरीब वैसे ही देख के बेचारे डर जाते हैं। किसी गरीब ने इनसे क्या अपना मुतालबा करना है, हमने क्या इनको अपनी बातें कहनी है। ये बदबख्त इस काबिल ही नहीं है कि हम इनसे अपने मसले बयान करें। इनको तो हुकूमत कितनी पड़ी हुई है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इन लोगों को अभी तक होश नहीं है। वहां पर मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतें लौट रही हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे, वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके ऊपर काफिर बम मार रहे हैं और यहाँ पर नवाज शरीफ के आने की तैयारी हो रही है। और यहाँ हमारे चैनल ये बता रहे हैं नवाज शरीफ कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत, ये सारे गुलाम है उन बदबख्तों के। ये बोल ही नहीं सकते, ये इसराइल के खिलाफ बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? कि अमेरिका की तरफ से इमदाद बंद हो जाएगी। रब के साथ अगर इनका ताल्लुक मजबूत होता, इन लोगों से अगर कलमे भी सुन लेना, ये जितने हुक्मरान आते हैं, यहां पर भी जो आते हैं ना आपके पास वोट मांगने के लिए, किसी से कह दो यार कलमे सुना अच्छे, किसी ने भी नहीं आते। जिनको अपने ईमान का ही नहीं पता, उन्होंने हमारी क्या हिफाजत करनी है, उन्होंने मुल्क की क्या हिफाजत करनी है। फिर मुल्क का यही हाल होना है जो इस वक्त हो रहा है। फिर मुसलमानों की बहनों और बेटियों की इज्जतें कश्मीर के अंदर भी लूटी जाएंगी, फलस्तीन के अंदर भी लूटी जाएंगी। फिर इसी तरह मुसलमानों के साथ जुल्म होगा जब मुसलमानों के अंदर गैरत ईमानी खत्म हो जाएगी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब आप चाहते तो आप ऊंटों की कतारें लेकर जा रहे थे, वक्त के बादशाह थे। आप चाहते तो आप गुलामों की अपनी एक फौज लेकर वहां पर जाते। क्यों? कि बैतुल मुकद्दस के अंदर आपने वो मफतूहा इलाका था, मुसलमानों के ऊपर रोब पड़, मुसलमानों का काफिरों के ऊपर एक रोब बैठता। लेकिन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक ऊँटनी सवारी के तौर पर ली, फिर अपने गुलाम से कहा कि ये मुसलमानों की, ये माल मुसलमानों की अमानत है। आज तो हमारी अमानतों के साथ जिस तरह खिलवाड़ ये लोग करते हैं, हम सब जानते हैं कि इनके बच्चे करोड़पति हैं, इनके बच्चे अरबपति हैं और एक गरीब का बच्चा मकरूज है, अभी पैदा भी नहीं हुआ, पहले ही बेचारा मकरूज है। हमारी नस्लें मकरूज हैं और इनकी नस्लें, अगर पता नहीं कितनी इनकी नस्लें बैठकर खाती रहे, कोई काम भी ना करे, तब भी जितना इन लोगों ने जमा किया है तब भी खत्म नहीं होगा। इनकी हवस अगर कोई शय मिटा सकती है तो वो सिर्फ जहन्नम की आग है, वो कब्र की तपिश ही इनकी हरारत मिटाएगी। इनके अंदर जो लालच पैदा हो चुकी है, इनको फिक्र ही नहीं है अवाम की, इनको फिक्र ही नहीं है कि मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। हजरत फारूक आजम ने अपने गुलाम से कहा कि अपनी बारी के ऊपर तू बैठेगा, अपनी बारी के ऊपर मैं बैठूंगा।
और फिर जब बैतुल मुकद्दस के करीब गए, अब मुसलमानों का मफ्तूहा इलाका था, उस वक्त सवार होने की बारी गुलाम की थी और आपकी बारी आ गई आगे नकेल पकड़ने की। अब गुलाम ने अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, आप वक्त के हुक्मरान हैं, वक्त के बादशाह हैं, हम मफ्तूहा इलाके के अंदर जा रहे हैं, मुसलमानों ने नया नया वो इलाका फतह किया है, या अमीर अल मोमिनीन, मैं अपनी बारी छोड़ता हूं, आप ऐसे करें, मेरी बारी के ऊपर आप सवार हो जाएं और मैं अपनी बारी अपनी खुशी से छोड़ता हूं, आप ऊपर बैठे, मैं नीचे चलता हूं। हजरत फारूक आजम ने कहा, ये मैं मुसलमानों का बादशाह हूं, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो किसने अदल करना है? आपने कहा तो अपनी बारी पर बैठेगा, उमर अपनी बारी पर बैठेगा। अब वो मंजर, अब वहां पर लाखों की तादाद के अंदर काफिर मौजूद है, लाखों की तादाद के अंदर लोग आकर देख रहे हैं कि मुसलमानों का हुक्मरान आ रहा है, कि जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया है वो हुक्मरान आ जा रहा है। वो मुंतजिर थे, वो देख रहे थे कि पता नहीं कितना बड़ा लश्कर लेकर आ रहा होगा, कितने बड़े शाही प्रोटोकॉल के साथ आ रहा होगा। जब उसने देखा, काफिरों ने जब देखा, आप जो बैतुल मुकद्दस के अंदर गए, उन्होंने कहा, मुसलमानों ये कैसा तुम्हारा हुक्मरान है? तुम्हारे हुक्मरान से तो ज्यादा खूबसूरत वो गुलाम है जिसने आगे ऊंट की नकील पकड़ी हुई है। तुम्हारे, उन्होंने तो यही समझा कि जो सवारी के ऊपर बैठा है यही तुम्हारा बादशाह है। उसने कहा कि कैसा ये तुम्हारा हुक्मरान है, इससे तो खूबसूरत इसका ये गुलाम है जिसने नकेल पकड़ी हुई है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कहा, लोगों तुम भूल गए हो, हमारा हुक्मरान वो नहीं है जो सवारी पर बैठा हुआ है, हमारा हुक्मरान वो है जिसने नकेल पकड़ी हुई है। लोगों ने जब उस वक्त वो मंजर देखा तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान तो ये थे, हमारा तो ये मेयार था कि गुलाम की जब बारी आई, वक्त का बादशाह था, मफ्तूहा इलाके के अंदर जा रहा था, गुलाम कह भी रहा है आप बैठ जाए, मैं अपनी बारी की कुर्बानी देता हूं, लेकिन उसके बावजूद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा, यार तू ऊपर बैठ, उमर सवारी की नकेल पकड़ेगा। और ये अंदाज है मफ्तूहा इलाके के अंदर जाने का। और अब हमारे हुक्मरानों का किसी इलाके के ऊपर जाने का अंदाज देख लें। ये जब आते हैं ना सिक्योरिटी की गाड़ियां लेकर, प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर, ये वैसे खैर के लिए आते हैं हमारे पास। हम इतने डरे होते हैं, इतना लश्कर लेकर आते हैं, पता नहीं ऐसे लगता है जैसे ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। ये प्रोटोकॉल इन्होंने रखा इसलिए होता है कि हमारे जहन जो पहले ही गुलाम बन चुके हैं और गुलामी की जंजीरों के अंदर घर जाए। दोस्तान मुकर्रम, आज अगर हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं ये गैरत कर लें, इसराइल मुसलमानों के मुकाबले के अंदर कुछ भी नहीं है। वो 313 थे, 1000 के लश्कर को हरा कर रख दिया था। आज 56 इस्लामी मुमालिक हैं और एक इसराइल उनके ऊपर भारी खड़ा हुआ है और उन्होंने बैतुल मुकद्दस के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला किया हुआ है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को, हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इनको गैरत ईमानी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके अंदर जिहाद का जज्बा पैदा फरमाए, अल्लाह इनको सीरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व